Hello children, welcome to my class. This is chapter 4 climate. So let's start your chapter. आज हम जलवायु क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे. In the last two chapters you have read about the landform and the drainage of our country. पिछले दो पाठों में हमने लैंडफॉर्म्स और ड्रेनेज, हमारे देश के लैंडफॉर्म्स और ड्रेनेज के बारे में पढ़ा. These are the two of the three basic elements that one learns about the natural environment of any area. किसी भी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए आवश्यक तीन मूल तत्वों में से दो तत्व यही हैं. In this chapter you will learn about the third, that is the atmospheric conditions that prevail over our country. Why do we wear balloons in December, or why is hot and uncomfortable in the north month of May, and why it rains in June and July? The answers to all these questions can be found out by studying about the climate of India. इस चैप्टर में हम एटमॉस्फेरिक कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे और क्यों हम दिसंबर में ऊनी वस्त्र पहनते हैं और क्यों मई और के महीने में गर्मी होती है, क्यों जून और जुलाई में बारिश होती है. ये सारे सवालों के जवाब हमें इस चैप्टर में मिलेगा. कौन से चैप्टर बच्चों? क्लाइमेट ऑफ इंडिया, यानी भारत के जलवायु के बारे में. क्लाइमेट refers to the sum total of weather conditions and variations over a large area of a long period time. और क्लाइमेट जो है, जलवायु, ये किसी भी जगह का, किसी भी क्षेत्र का पूरे लंबे समय तक का मौसम का अनुमान होता है. और वेदर रेफर्स टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेरिक ओवर एन एरिया ऑफ एनी पॉइंट ऑफ टाइम. मौसम जो होता है वो किसी भी समय का तत्कालिक भाव होता है, और क्लाइमेट जो होता है वो लंबे समय तक का किसी भी जगह का वातावरण का लंबे समय के किसी भी विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि का कम से कम 30 वर्ष या उससे अधिक के मौसम की अवस्था और विविधताओं का कुल योग जो है वो जलवायु कहलाता है. और मौसम एक विशेष समय में किसी भी क्षेत्र का वायुमंडल की अवस्था को बताता है. जैसे कि मौसम जो है वो जलवायु के तत्व तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, उसमें कितना ह्यूमिडिटी है और वर्षण, ये सब होते हैं. और आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि मौसम की जो अवस्था है वो प्रायः एक दिन में ही कई बार बदल जाती है. मौसम क्या होता है? किसी भी जगह का एक दिन में कभी धूप होगी, कभी बारिश होगी, कभी हवा चलेगी, है ना, ये चीज़. लेकिन जलवायु जो होता है वो लंबे समय अवधि तक एक ही होता है, उसको हम जलवायु कहते हैं. और मौसम जो है वो डे बाय डे, पीरियड बाय पीरियड चेंज होता है, लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह, महीनों तक और वायुमंडलीय अवस्था लगभग एक समान बनी रहती है. जैसे दिन गर्म और ठंडा, हवादार या शांत, आसमान में बादल से घिरा हुआ या साफ या आर्द्र या शुष्क हो सकते हैं. लेकिन महीनों के औसत और वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष को गर्म, ठंडा या बारिश वाले ऋतुओं में विभाजित किया गया है. विश्व को जो है वो अनेक जलवायु प्रदेश में बांटा गया है. क्या तुम जानते हो कि भारत की जलवायु कैसी है और ऐसा क्यों है? इसी संबंध में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. Climate of India is described as the monsoon type in Asia. This type of climate is found mainly in the south and the southeast. Despite of overall unity in the general pattern, there are perceptible regional variations in climatic conditions within the country. Let us take two important elements, temperature and precipitation, and examine temperature and precipitation and examine how they vary from place to place and season to season. In summer,
The mercury occasionally touches 50 degrees centigrade in some parts of the Rajasthan deserts, where it may be around 20 degrees C in Pahalgam in Jammu and Kashmir. On a winter night, temperature at Dras in Jammu and Kashmir may be as low as minus 45 degrees centigrade. Thiruvananthapuram, on the other hand, may have a temperature of 22 degrees centigrade. Let us now look at precipitation. There are variations not only in the form of types of precipitation but also in its amount and the seasonal distribution. While precipitation is mostly in the form of snowfall in the upper parts of Himalayas, it rains over the rest of the country. The annual precipitation varies from over 400 centimeter in Meghalaya to less than 10 centimeter in Ladakh and western Rajasthan. Most parts of our country receive rainfall from June to September. भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। एशिया में इस प्रकार की जलवायु खासकर दक्षिण और दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। सामान्य प्रतिरूप में लगभग एक समान होते हुए भी देश की जलवायु की अवस्था जो है वो भिन्न है प्रदेशों के अनुसार। कैसे? हम तो महत्वपूर्ण तत्व तापमान और वर्षण को अगर लेकर देखें तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर और एक मौसम से दूसरे मौसम में इनमें देखेंगे कि कितनी तरह की भिन्नता है। जैसे मान लीजिए कि गर्मी में अगर राजस्थान के मरुस्थल के कुछ स्थानों को टेम्परेचर को देखिए तो वहाँ लगभग 50 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर पहुँच जाता है। जबकि अगर वही जम्मू कश्मीर को देखें तो पहलगाम में तापमान जो है वो लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। तो इस तरीके से भारत के ही अगर दो क्षेत्रों में हम देखें तो टेम्परेचर में कितनी भिन्नता पाई जाती है। उसी तरह से सर्दी की रात में अगर जम्मू कश्मीर में द्रास का तापमान देखेंगे तो वहाँ -45 सेंटीग्रेड तक हो सकता है। जबकि अगर तिरुवनंतपुरम में देखेंगे तो यह 22 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। इस तरीके से जगह के अनुसार वेरिएशंस क्लाइमेट में देखा जाता है इंडिया के अंदर। अब अगर बारिश की ओर ध्यान दें तो वर्षण के रूप में प्रकार में ही नहीं, इसके मात्रा और ऋतु के अनुसार इसके वितरण में भी अंतर पाया जाता है। जैसे कि हिमालय में वर्षण जो है वो ज़्यादातर हिम के रूप में होता है, बर्फ के रूप में। और देश के तमिलनाडु coast gets a large portion of its rain during October and November. In general, coast areas experiences less contrast in temperature conditions. Seasonal contrasts are more in the interior of the country. There is decrease in rainfall generally from east to west in northern plains. These variations have given rise to variety in lives of people in terms of the food they eat, the clothes they wear, and also the kind of houses they live in. तो अगर हम तमिलनाडु के किनारों की तरफ देखें तो उसके बहुत सारे विशाल भाग में बारिश जो है वो अक्टूबर से नवंबर के महीने में होती है। और सामान्य समुद्री तटों को देखें तो वहाँ पे टेम्परेचर कंट्रास्ट जो है वो कम होता है। सीजनल कंट्रास्ट आर मोर इन द इंटीरियर ऑफ द कंट्री। दिस इज सामान्य रूप से तटीय क्षेत्रों के तापमान में इसका जो अंतर है वो कम होता है। देश के आंतरिक भाग में मौसमी या जो ऋतुनिष्ठ अंतर होता है वो अधिक होता है। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्य पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है और ये जो अंतर है ये लोगों के जीवन में भी अंतर लाती हैं, जो उनके भोजन, वस्त्र और घरों के आकार प्रकार में दिखती हैं। Climatic controls. There are 6 major controls of the climate of any place. They are latitude, altitude, pressure and wind system, distance from the sea, ocean currents and relief features. Due to the curvature of the earth, the amount of solar energy received varies according to latitude. As a result, air temperature generally decreases from the equator towards the poles as one goes from the surface of the earth to higher altitude. The atmospheric
the atmosphere becomes less dense and temperature decreases. The hills are therefore cooler during summers. The pressure and the wind system of any area depend on the latitude and altitude of the place. Thus, it influences the temperature and rainfall pattern. The six exerts a moderating influence on climate as the distance from the sea increases, its moderating influence decreases, and the people experience extreme weather conditions. This condition is known as continentally uh, ocean currents along with onshore winds affect the climate of the coastal areas. From example, any coastal area with warm or cold currents flowing past it will be warmed or cooled if the winds are onshore. इसका जो जलवायु नियंत्रण है वो किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाला 6 कारक होता है। पहला होता है अक्षांश, दूसरा होता है ऊंचाई, तीसरा वायु दाब और पवन तंत्र या चौथा होता है समुद्र से दूरी, पांचवा महासागरीय धाराएं और छठा होता है उच्चवाच लक्षण। यानी कि पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे जो सौर ऊर्जा की मात्रा है वो अक्षांशों के कारण अनुसार अलग अलग होती है और इसके परिणाम स्वरूप तापमान जो है वो विषुवत रेखा से लेकर ध्रुवों की ओर सामान्यतः घटता जाता है। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की तरफ जाता है, नीचे से जब ऊंचे ऊपर की ओर जाता है तो वायुमंडल की जो डेंसिटी है वो कम होती जाती है और तापमान जो है वो घटता जाता है। इसलिए जो पहाड़ियाँ हैं वो वहाँ के गर्मी के मौसम में भी ठंडी होती है और आपने देखा होगा कि लोग गर्मी के मौसम में पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ पर्यटन करने जाते हैं, घूमने जाते हैं, रेस्ट करने जाते हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ पे भीषण गर्मी होती है वहाँ जो उसके अपोजिट में जो पहाड़ी वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ का मौसम थोड़ा ठंडा होता है और इसलिए लोग वहाँ की तरफ रुख करते हैं। किसी भी क्षेत्र का जो वायु दाब है और पवन तंत्र है उस स्थान के अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर करती है और इस तरीके से ये तापमान और वर्षा के वितरण को भी प्रभावित करता है, डिस्ट्रीब्यूशन को। समुद्र का जलवायु पर बराबर से प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है यह प्रभाव जो होता है कम होता जाता है। आप लोग किताब में देखते रहिए, है ना, और इंग्लिश में मैं हिंदी में ट्रांसलेट करती जाती हूँ और जो समझाती जाती हूँ। एवं जो लोग हैं वो विषम मौसम की अवस्थाओं को भी महसूस करते हैं और इसीलिए इसे महाद्वीपीय अवस्था जो है कहते हैं। अब है फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड्स, है ना। इसको देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through the middle of the country from the run of Kutch in the west of Mizoram in the east. Almost half of the country lying south of the Tropic of Cancer belongs to the tropic area. All the remaining area north of the tropic lies in subtropics. Therefore, India's climate has characteristics of tropical as well as subtropical climates. Altitude: India has mountains to the north which have an average highest height of about 6,000 meters and also has a vast coastal area where the maximum elevation is about 30 meters. The Himalayas prevent the cold winds from Central Asia from entering the subcontinent. It is because of this mountains that this subcontinent experiences comparatively milder winters as compared to Central Asia. Pressure of wind: the climate and associated weather conditions in India are governed by the following atmospheric conditions: pressure and surface winds, upper air circulation, and western cyclonic disturbances and tropical cyclones. India lies in the region of northeasterly winds. These winds originate from the subtropical high pressure belt of the northern hemisphere. They blow
southwards get deflected to the right due to the Coriolis forces and move towards the equatorial low pressure area. Generally, these winds carry little moistures as they originate and blow over land. Therefore, they bring little or no rain. Hence, India should have been an arid land, but it is not so. अब है महासागरीय धाराएं समुद्र से तट की ओर चलने वाली जो हवाएं हैं वो हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती हैं। जैसे कि कोई भी तटीय क्षेत्र जहां गर्म या ठंडी जलधाराएं बहती हैं और वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर, तब वो तट गर्म या ठंडा हो जाएगा। और अंत में किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में उसका जो ऊंचाच है वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऊंचे पर्वतीय ठंडे और गर्म वायु को अवरोधित करते हैं, रोकते हैं, और यदि इनकी ऊंचाई इतनी अधिक हो कि वे वर्षा लाने वाली वायु के रास्तों को रोकने में सक्षम होते हैं तो ये उस क्षेत्र में वर्षा का कारण भी बन जाते हैं। पर्वतों के जो ढाल होते हैं, पवन अभिमुख ढाल, उनके अपेक्षाकृत वो सूखे रहते हैं। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक है अक्षांश ऊंचाई, जैसे कि अक्षांश कर्क वृत्त देश के मध्य भाग पश्चिम में जो कच्छ का रण है वहाँ से लेकर पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरती है। कर्क वृत्त जो है वो देश के मध्य भाग से पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरती है और देश का लगभग आधा भाग कर्क वृत्त के दक्षिण में स्थित है जो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, सूखा। और कर्क वृत्त के उत्तर में स्थित शेष भाग उपोष्ण कटिबंधीय है। इसलिए भारत की जलवायु जो है वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं उपस्थित हैं। अब ऊंचाई, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है और इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। भारत का तटीय क्षेत्र भी बहुत विशाल है जहाँ की अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है और हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहादेश में प्रवेश करने से रोकने का काम करता है। इन्हीं पर्वतों के कारण इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ती है। हिमालय जो है वो इतना ऊंचा है कि वो उधर तरफ से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है और इसलिए इस तरफ जो है वो ठंड कम पड़ती है। The blue southwards get deflected to the right due to the, फिर से देखिए वायु, भारत की जो वायु दाब है वो पवन तंत्र अद्वितीय है और ठंडे के समय में हिमालय से उत्तर में उच्च दाब होता है और इस क्षेत्र की जो ठंडी शुष्क हवाएं हैं वो दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती हैं। ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया एवं उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र बना रहता है। इसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है और जो वायु है वो दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्वी दिशा में बहते हुए विषुवत वृत्त को पार कर दाहिनी ओर मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित निम्न दाब की ओर बढ़ने लगती है। इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून वायु के नाम से जाना जाता है और ये पवनें कृष्ण महासागरीय के ऊपर से बहती हैं, नमी ग्रहण करती हैं तथा भारत की मुख्य भूमि पर वर्षा करती हैं। Now seasons, the monsoon type of climate characteristics by a distinct seasonal pattern. The weather conditions greatly changes from season to the other. These changes are particularly noticeable in the interior part of the country. The coastal areas do not experience much variation in temperature, though there is variation in rainfall pattern. How many seasons are experienced in your place? 4 main seasons can be identified in India: the cold, the wet season, the hot, the advancing monsoon, and the retreating monsoon with some regional variations. मानसूनी जलवायु की विशेषता एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप होता है और एक ऋतु से दूसरे ऋतु में मौसम की अवस्था में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। खास करके देश के आंतरिक भागों में ये जो परिवर्तन है वो अधिक मात्रा में परिलक्षित होते हैं। तटीय क्षेत्रों के तापमान में बहुत अधिक भिन्नता नहीं होती।
यद्यपि यहाँ वर्षा के प्रारूपों में अंतर पाया जाता है। और यहाँ मुख्यतः 4 तरह की ऋतुओं को पहचाना जा सकता है। ये है शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और कुछ क्षेत्रीय विविधताओं के साथ मानसून के आगमन और वापसी का काल। द कोल्ड वेदर सीजन यानी कि विंटर। द कोल्ड वेदर सीजन बिगिंस फ्रॉम माइल्ड नवंबर इन नॉर्दर्न इंडिया एंड स्टेट्स टिल फरवरी। यहाँ पे जो ठंड शीत ऋतु के बारे में, तो शीत ऋतु यहाँ जनरली नवंबर से शुरू होता है और इंडिया के कई भागों में रहता है, फरवरी तक रहता है। दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ्स इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के उत्तरी भाग में जनवरी से दिसंबर से जनवरी जो है वो सबसे ठंडा महीना माना जाता है। द टेम्परेचर डिक्रीजिंग फ्रॉम साउथ टू द नॉर्थ, और तापमान जो है वो दक्षिण से उत्तर की तरफ घटता जाता है। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ चेन्नई ऑन द ईस्टर्न कोस्ट इज बिटवीन 24 to 25 डिग्री सेल्सियस। इसका जो औसत तापमान है चेन्नई का पूर्वी समुद्र तटीय क्षेत्र में वो है 24 से 25 डिग्री सेल्सियस। और जबकि उत्तरी मैदानों की तरफ जो तापमान होता है उस समय इट रेंजेस बिटवीन 10 डिग्री एंड 15 डिग्री सेल्सियस। यानी कि चेन्नई की तरफ का अगर हम तापमान देखें उस समय तो वो 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। और अगर हम उत्तरी मैदान की बात करें तो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान इस समय होता है। डेज आर वार्म एंड नाइट्स आर कोल्ड। दिन गर्म रहता है लेकिन रातें ठंडी रहती हैं। फ्रॉस्ट इज कॉमन इन द नॉर्थ एंड द हायर स्लॉप्स ऑफ द हिमालयाज एक्सपीरियंसेस स्नोफॉल। और यहाँ पे कुहासा जैसा छाया रहता है। और उत्तरी भागों में जहाँ हायर स्लॉप्स हैं हिमालयाज के, वहाँ पे बर्फबारी भी होती है। ड्यूरिंग दिस सीजन द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड winds prevail over the country. They blow from land to sea and hence for most part of the country it is dry season। और इस सीजन में उत्तरी जो भाग हैं वो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड जो है विंड वो पूरे कंट्री में चलती है और दे ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी, और ये ज़मीन से समुद्र की तरफ उठती जाती हैं। और इसलिए फॉरमोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री देश के बहुत सारे भागों में इसलिए उस समय मतलब समुद्र तट से ये चलती हैं हवाएं, और इसलिए इस समय जो है वो सूखा मौसम रहता है। सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल ओकर्स ऑन द तमिलनाडु को। थोड़ी बारिश तमिलनाडु के समुद्र तटीय पर होती है हवा के दबाव की वजह से। दे हेयर दे ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड। जो हवा का दबाव समुद्र से जमीन से समुद्र की तरफ रहता है। इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री ऑफ फीवर हाई प्रेशर रीजन्स डेवलप विद लाइट winds moving outwards from this area influenced by the relief. These winds blow through the Ganga valley from the west and the northwest. The weather is normally marked by clear sky, low temperature and low humidity and fuel variable winds. A characteristic feature of the cold weather season over the northern plains in the inflow of cyclonic disturbances from the west and the northwest. These low pressure systems originate over the Mediterranean Sea and the Western Asia and move from India. Along with the westerly flow, they cause the much needed winter rains over the plains and snowfall in the mountains. Although the coastal amount of the winter rainfall, locally known as Mahavat, is small, they are of immense importance for the cultivation of rabi crops. The peninsular region does not have a well-defined cold season. There is hardly any noticeable seasonal change in temperature pattern during winter due to the moderating influence of the sea. तो उत्तर भारत में जो है वो शीत ऋतु जो नवंबर से लेके फरवरी तक रहता है, और जैसे कि हमने बताया तापमान जो उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है। पूर्वी तट पर जो चेन्नई का औसत तापमान है वो 24 डिग्री सेल्सियस से 25 के बीच में रहता है। और ये तो बता चुकी कि उत्तर मैदान में 10 सेल्सियस से 15 सेल्सियस ज़्यादा। इस ऋतु में देश के उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं और ये स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं, और इसलिए देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम रहता है। और इन पवनों के कारण कुछ मात्रा में
वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है, क्योंकि वहाँ ये जो पवनें हैं वो समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। देश के उत्तरी भाग में एक कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसमें हल्की पवनें उस क्षेत्र से बाहर की ओर प्रवाहित होती हैं, और उच्चावच से प्रभावित होकर ये पवन पश्चिम से उत्तर पश्चिम से गंगा घाटी में बहती है। और सामान्यतः इस मौसम में आसमान साफ, तापमान आर्द्रता कम, पवनें कमजोर हो जाती हैं और परिवर्तित होती हैं। शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिम से उत्तर पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्भाव विशेष लक्षण होता है, और ये जो है कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर एवं पश्चिम एशिया के ऊपर उत्पन्न होती हैं, और पश्चिमी पवनों के साथ ये भारत में प्रवेश करती हैं। इसके कारण शीतकाल में मैदानों में वर्षा होती है और पर्वतों पर बर्फबारी होती है, जिसकी उस समय बहुत अधिक आवश्यकता होती है। हालांकि शीतकाल में यहाँ वर्षा, जिसे स्थानीय तौर पर महावट कहा जाता है, की मात्रा कुछ कम होती है, लेकिन ये रबी फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और प्रायद्वीपीय भाग में मतलब उस रबी फसल मतलब उस मौसम में जो होने वाले फसल होते हैं, और प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु जो है वो कुछ अस्पष्ट नहीं होती है। समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण शीत ऋतु में भी यहाँ तापमान जो है वो उसके प्रारूप में न के बराबर ही परिवर्तन होता है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में फिर इस चैप्टर को ख़त्म कर दूंगी। तब तक के लिए थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपको समझ में आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। थैंक यू।